اب جب خدا نے اپنا بدن پیش کر دیا تو ظاہری بات ہے بدن تو دے دیا، اب اس کے لیے جان بھی دینی پڑے گی، اب اس کے لیے روح بھی دینی پڑے گی، تو تبھی تو آدم پاک ہوگا۔ جس آدم نے گناہ کیا اس کی جان، روح، بدن تینوں چیزیں ناپاک ہو چکی تھی۔ تو سنیے، اب یسوع مسیح نے شاعر بانی کے موقع پر خون بھی لیا اور کہا لو کھاؤ پیو میرا بدن کیونکہ تمہارا بدن والا گناہ آلودہ ہے، میرا خون کیونکہ تمہارا خون بھی گناہ آلودہ ہے، یعنی جان بھی گناہ آلودہ ہے۔ تو یہاں پر دو اکنون سرگرم نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح کے گیتسمنی باغ کے مقام سے پہلے فسح کی تیاری کے مقام پر واضح طور پر خداوند یہ لوگوں کو اعلان کر رہا ہے کہ جس انسان کو میں بنایا تھا اس کا بدن بھی گناہ آلودہ ہے اور اس کی جان بھی گناہ آلودہ ہے، اسی لیے میں فسح کی تیاری کروا کر کہتا ہوں لو پیو یہ میرا خون ہے جو نئے عہد میں ہے، لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو نئے عہد میں ہے، کیونکہ تمہارا بدن بھی گناہ آلودہ ہے، تمہاری روح بھی گناہ آلودہ ہے، تمہاری جان بھی گناہ آلودہ ہے۔ بھائیو بھید کو سمجھو، بھائیو بائبل مقدس کے بھیدوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے اندر لو، کفارہ سمجھو اور تصریح سمجھ میں آ جائے گی۔ اب لکھا ہے جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس نے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے آدم کو خدا نے کیوں چھوڑ دیا؟ گناہ کے سبب سے چھوڑ دیا، گناہ کے سبب سے باغ عدن سے نکال دیا۔ اور یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، اور یہودا نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے ایک راست باز کو پکڑوا دیا ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، اور پلاطوس نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، اور اس ڈاکو نے بھی کہہ دیا تھا تو نے بھی گناہ کیا، میں نے بھی، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کا بن باپ پیدا ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی ذات میں گناہ نہیں ہے، وہ کامل شخص اور کامل خدا ہے۔ اس بات کی دلیل بائبل مقدس میں جگہ بجگہ درج ہے۔ اب یہاں پر واضح طور پر ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ مکمل ہو چکا، آدم کو گناہ کے سبب سے چھوڑا، اور یسایہ یہ بیان کرتا ہے خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے اور وہ دنیا کے گناہ اس پر لاد دے، جیسے یوحنا کہتا ہے یہی وہ برا ہے۔ تو جب ہمارے اور دنیا کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، جیسے فلپیوں کے خط میں لکھا ہے گناہوں کی وہ دستاویز جو تمہارے نام پر تھی اور تمہارے خلاف تھی کیلوں کے ساتھ صلیب پر جڑ دی گئی، اور ہمارے گناہوں کو اس نے ٹھا لیا، اور اس نے کہا ہے باپ ان سب کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے پر لے کر چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آدم کو کیوں چھوڑا؟ اس کے اوپر گناہ تھا۔ پاک خدا اور ناپاک آدم اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب یہاں پر اس آدم کا کفارہ ہوا۔ لکھا ہے جب یسوع نے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہیکل کا وہ پردہ پھٹ کر دو حصوں میں ہو گیا، اور وہ ملاپ جو آدم اور خدا کے درمیان کٹ گیا تھا، وہ رشتہ جو آدم اور انسان کے درمیان جدائی آ چکی تھی، یسوع مسیح کے جان دیتے ہی وہ پردہ پھٹ کر خدا اور انسان کا ملاپ ہو گیا، اور خدا زمین پر اتر کر دوبارہ انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے آ گیا، کیونکہ خدا مجسم ہو کر دنیا میں آیا تھا۔ یہاں پر خدا اور انسان کا دوبارہ ملاپ ہوتا ہے۔ شریعت کنڈیشن تھی انڈائریکٹ، اب یہاں یسوع مسیح جب خود آ کر اپنا کفارہ دیتا ہے تو دوبارہ سے خدا انسانوں کے درمیان آ کر رہ کر اپنا کفارہ دے کر انسانوں کو بحالی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر اناجیل کا مطالعہ کر لے تو ان سب کا تعلق ایمان سے ہے۔ کہتے اگر تو ایمان لائے گا
तो निजात पाएगा, अगर ईमान नहीं लाएगा तो निजात नहीं पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा, अगर रेवलेशन की किताब भी पढ़ लें तो उसमें लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो गालिब आता है, उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। और यीशु मसीह के मरने के बाद जो लोग उस पर ईमान लाते हैं, उसके मरने और जी उठने पर उनके ऊपर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। ये मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। पहली मौत सब के ऊपर आदम की वजह से आती है, और सब दूसरों को जिनका कफारा मसीह ने दिया, जो मसीह के कफारे पर ईमान लाते हैं, उनकी जान, रूह, बदन, सारी चीजें पाक होती है मसीह के कफारे पर ईमान लाने के लिए। तसलीस को समझने के लिए कफारा बहुत जरूरी है, और समझिए। और कफारा गुनाह की अलामत है। बहुत से लोग आज कफारा, कुर्बानियां तो देते, लेकिन ये नहीं जानते कि कुर्बानी क्यों देते हैं। अब तसलीस बड़ी खूबसूरत पिक्चर हमें नजर आ रही है। अब आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन जो कुछ मैं बयान करना चाहता था इन 4 वीडियो में मैंने आपके साथ बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ चुकी है। आखिर में सवाल, यीशु मसीह क्यों 3 दिन मरा? 4 दिन क्यों नहीं, 6 दिन क्यों नहीं, 7 दिन क्यों नहीं, 8 दिन क्यों नहीं, 1 दिन क्यों नहीं, 10 दिन क्यों नहीं, 15 दिन क्यों नहीं? वाई 3 दिन? क्यों 3 दिन? सुनिए, जिस आदम को खुदा ने पाक बनाया था, उसकी जान भी पाक थी, उसकी रूह भी पाक थी, उसका बदन भी पाक था। और खुदा के अंदर भी कसरत पाई जाती है, उसकी जान भी है, उसका जिस्म भी है, उसकी रूह भी है। अब जिस इंसान को पाक बनाया था वो नापाक हुआ, उसकी जान भी नापाक, उसकी रूह भी नापाक, उसका बदन भी नापाक। अब यीशु मसीह 3 दिन क्यों मरा? यह सुन लीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को, जिसने उस आदम को बनाया, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने, तख्लीक का दावा करता है खुदावंद यीशु मसीह, जब उसने बनाया तो उसे पता था कि आदम के अंदर गुनाह आ चुका है, उसकी जान में भी, उसके बदन में भी, उसकी रूह में भी। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से मुजस्सम होकर इब्ने आदम के रूप पर दुनिया में आया। किताब मुकद्दस में लिखा, पहले आदम के सबब से मौत दुनिया में आई, और दूसरा आदम यानी मसीह जब मुजस्सम होकर दुनिया में आए तो दूसरे आदम के सबब से जिंदगी दुनिया में आती है। अब जब यीशु मसीह पहले दिन मरा तो किताब मुकद्दस ये बयान करती है कि जिस आदम को बनाया तो 3 तरह गुनाहगार हुआ। जब पहले दिन आदम मरा, पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह मरा, तो यीशु मसीह तो पाक था, उसकी जात में गुनाह नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया था, क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं है। अगर वो आपके गुनाह अपने ऊपर ले लेता है और वो आपकी खातिर मर जाता है, तो जब आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे तो मौत उसे कब्र में नहीं रख सकती है। इसलिए उसने मेरे और आपके पापों को ऊपर ले लिया था। पापी आदमी पापी को क्या चढ़ाएगा, गुनाहगार गुनाहगार को क्या चढ़ाएगा? ये बात आपके और मेरे ज़हनों में नक्श रहनी चाहिए। अब यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं है, उसकी जात में पाकीज़गी है। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 पढ़ लें तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह पाकीज़गी की रूह के वसीला जी उठा। मेरी और आपकी रूह पाकीज़ा नहीं है। मेरी और आपकी रूह में गुनाह पाया जाता है, मेरे और आपके बदन में गुनाह पाया जाता है, मेरी और आपकी जान में गुनाह पाया जाता है। यीशु मसीह का बदन भी पाक था, यीशु मसीह की रूह भी पाक थी, और यीशु मसीह की जान भी पाक थी, क्योंकि वो आदमी की तख्लीक और आदमी के मिलाप से पैदा नहीं बल्कि बिन बाप पैदा हुआ था। अब यीशु पाक था, इसलिए उसने मेरे और आपके गुनाहों को ऊपर ले लिया। अगर यशायाह को पढ़ ले तो लिखा, खुदावंद को पसंद आया उसे कुचले, वो मार खाए। खुदावंद ने हमारे गुनाह उस पर लाद दिए थे। ठीक उसी तरह जैसे यौम कफारा के मकाम पर यहूदी अपने गुनाह बकरे पर लाते थे, हाथ रख कर कहते थे, इस हमारे गुनाह इसमें चले जाएं और इसकी पाकीज़गी हम में आ जाए। ठीक उसी तरह यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को उठाकर सलीब के ऊपर कहा और अपनी जान दे दी। दे इसलिए दिए क्योंकि उसे पता था मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसने कहा, मैं अपनी जान देता हूं और फिर उसे ले लूंगा। मुझे जान देने का भी इख्तियार है और मुझे जान लेने का भी इख्तियार है। अब गौर से सुनिए, पहले दिन जब यीशु मसीह कब्र में रहा तो आपका बदन पाक हुआ। दूसरे दिन जब यीशु मसीह कब्र में रहा तो आपकी रूह पाक हुई, और तीसरे दिन आपकी जान पाक हुई।
जब यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहा तो जिस आदम को बनाया था वो 3 तरह, जान, जिस्म और रूह। अब ये तीनों जब पाक हो चुकी हैं, जैसे ही यीशु मसीह ने आपके बदन, जान के गुनाहों को खत्म कर दिया, अब यीशु मसीह की जात में जाती गुनाह नहीं था। अब किताब मुकद्दस कहती है, रोमियो 1:4, मैंने आपको पहले भी एक बाप उसकी 3-4 आयत में लिखा है कि वो जब यीशु की जात में जाती गुनाह नहीं था तो कौन से गुनाह की वजह से मरा? जो मेरे और आप और आदम से मरूसी गुनाह को खत्म करने के लिए। अब जब उसके सब किस्म के गुनाह खत्म हो चुके थे, आदम के, उसकी जान के भी, रूह के भी, बदन के भी, अब किताब मुकद्दस लेता है वो मौत और कब्र पर फतह पा चुका था और मौत के बंद खोलकर जी उठा। और किताब मुकद्दस में लिखा है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, जो आदम के ऊपर गुनाह की वजह से है भी था। अब मैं इब्ने आदम की सूरत में दुनिया में आया और आदम के गुनाहों को लेकर कब्र पे उतर चुका हूं और 3 दिन के अंदर मैंने उनके गुनाहों को मलिया मेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्योंकि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। अब दुनिया में जितने भी आदम हैं, जो कोई मुझ पर, मेरे कफारे पर ईमान लाएगा, उसके गुनाह खत्म हो जाएंगे। और जब तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आदम की जान के भी गुनाह खत्म, आदम के बदन के गुनाह भी खत्म, उसकी रूह के गुनाह भी खत्म और आदम दोबारा से पाक बनने के काबिल हो गया है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया था और खुदा जानता था खुदा इंसान के अंदर क्या गुनाह आया है। और यीशु मसीह का 3 दिन मरना, ये बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा भेद है तसलीस में, कि यीशु मसीह को पता था कि उसने इंसान को 3 तरह से बनाया और वो 3 तरह से गुनाहगार हुआ। अब वो 3 तरह मरा, मर के जब वो जी उठा तो उसने कहा, आए कब्र तेरी फतह कहां रही। तो ये भेद आपको समझने की जरूरत है। खुदा ने आदम को 3 तरह बनाया, 3 तरह नापाक हुआ। मसीह के मरने पर, जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जाओ कोई इस बात पर ईमान लाता है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ, जी उठा, तो इसका मतलब है कि वो मसीह ये कह रहा है कि यीशु ने मेरे बदन के गुनाह भी खत्म कर दिए, मेरी जान के गुनाह भी खत्म कर दिए, मेरी रूह के गुनाह भी खत्म कर दिए, क्योंकि मैं अपने कामों से, रास्तबाजी के कामों से आसमान की बादशाही में नहीं, बल्कि यीशु के कफारे पर ईमान लाकर अपनी रूह, जान, जिस्म, बदन को पाक कर कर खुदा की बादशाह में जाऊंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आदम खुदा के साथ रहता था, मैं भी खुदा के साथ उसी तरह रहूंगा। यीशु मसीह ने उसका वादा भी किया, मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जहां आदम और हवा और मैं रहते थे, वहां तुम सब मेरे साथ रहोगे, मैं और बाप सब एक हैं। तो यहां पर तसलीस बड़ी वाज़ेह तौर पर आपके सामने पिक्चर आ रही है। खुदा ने आपकी जान के भी, आपके बदन के भी, आपके रूह, सब किस्म के गुनाह खत्म कर दिया है। सब मसीहियों से अपील करता हूं, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाएं। ये इस बात की तसल्ली है, आपका बदन, आपकी जान, आपकी रूह, सब किस्म के गुनाह का कफारा यीशु मसीह ने दिया। सुनिए, कहता मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों का कफारा दिया है, अधूरे गुनाहों का कफारा नहीं दिया। उसने तुम्हारे माजी, हाल, मुस्तकबिल का कफारा दिया है। और जो कोई इस बात पर ईमान ला चुका है, मैं ईमान रखता हूं कि उसके गुनाह धुल चुके हैं और वो पाक है और वो रास्तबाज है, अपने कामों के सबब से नहीं, खुदा के कफारे पर ईमान लाने के सबब से। अब सबको समझ आ चुकी है कि यीशु मसीह 3 दिन क्यों मरा, क्योंकि वो मरने का भेद यह था कि आपके जान और बदन, रूह के गुनाहों का कफारा दे सके। खुदा आप सब सुनने वालों को बहुत ज्यादा बरकत दे। जिस किसी मसीही का सवाल हो, क्वेश्चन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जरूर शेयर करें, मैं उसका जवाब दूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।